Jai Somnath friend, I am Rakesh from Gokuldam. Today we are going to learn unit number 3, Movement Towards a New World. But before that, we will discuss here about second chapter. In the second chapter, we have learned about First World War and Russian revolutions. In the chapter number 2, we have also learned about factors that caused for the First World War, as well as we have also learned about effects of the First World War and Russian revolutions. In short, we can say that in chapter number 2, we have learned up to First World War and its effects on human being. In this chapter, friend, we will learn about the condition of the world after First World War. So, which type of reaction have been came in the world from different countries. Now, friend, you can see here textbook page, unit number 3, Movement Towards a New World. So, first of all, we will learn here a first paragraph, global trends between the two world wars. After the First World War, people became economically poor. The immediate governments in power were unsuccessful in improving this condition. So friend, as a result of the First World War, people became economically poor, and whatever governments in particular countries, they were proved unsuccessful to improve their condition. People lost trust in democracy. Dictatorship began in some countries, which became a driving force for the Second World War. We know that, friend, due to the pathetic condition of the people, they have lost trust in democracy, and as a result of that, dictatorship began in some countries, and this thing led to the world for the Second World War. Let's study the following series of events in this respect. So friend, in this chapter we will learn about which things led to the Second World War. So first number here given, fascism in Italy. Second number, Nazism in Germany. Third number, militarism in Japan. And fourth number, global depression of 1929 to 1932. First of all, here given, fascism in Italy. In the First World War, Italy was on the side of the winning nations and fought for those nations. It incurred a massive expenditure of $12 billion, lost lives of 6 lakh soldiers. So friend, Italy was on the side of winning nations in the First World War, and they have also fought on behalf of winning nations, and as a result of that they have incurred massive expenditure of $12 billion, as well as they have also lost 6 lakh soldiers in the First World War. Yet, the other winning nations took over the choicest territories, ignoring Italy. So, after the First World War, those nations who were won the First World War, they have captured or received their choicest territories in the world, but they have ignored to Italy. यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो भी विनिंग नेशंस थे तो उन्होंने अपनी पसंदगी के जो भी टेरिटरीज थी तो उनको चॉइस किया था, उनको पसंद किया था, मगर उन लोगों ने इटाली को इग्नोर किया था. इटाली वॉज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड, यानी कि इस कारण सभी कंट्री ने उसको इग्नोर किया था. इसके कारण इटाली जो था तो वो बहुत गुस्से में था और वो एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग फील कर रहे थे. इट्स नेशनलिस्टिक फीलिंग वॉज हर्ट, for which Italians considered its government responsible and was more than eager to avenge this national humiliation as soon as possible. यानी कि उनकी जो एक नेशनलिस्टिक जो फीलिंग थी तो वो हर्ट हुई थी, और उनके लिए जो इटालियन पीपल थे तो इटालियन पीपल उनकी जो गवर्नमेंट थी तो उनकी गवर्नमेंट को वो रिस्पॉन्सिबल मानते थे कि ऐसी कंडीशन इटालियन गवर्नमेंट के कारण ही हुई है. वर्ल्ड में उनकी जो एक ह्यूमिलिएशन की जो कंडीशन थी, यानी कि एक शर्मजनक कंडीशन उनकी खड़ी हुई थी, तो उनके कारण इटालियन गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा वो मानते थे. और इसी कारण वो एक एवेंज यानी कि रिवेंज लेने के लिए वो उत्सुक थे. वो कैसे भी करके
अपना जो भी रिवेंज है तो वो रिवेंज लेना वो चाहते थे। इन ऑर्डर टू salvage Italy from such a dire situation, बेनिटो मुसोलिनी लॉन्च द फासिस्ट पार्टी। और इसी कारण इटाली के जो बेनिटो मुसोलिनी है तो उन्होंने फासिस्ट पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट की, यानी कि उन्होंने एक फासिस्ट पार्टी नाम की जो एक पार्टी है तो वो लॉन्च की। He adopted a bundle of sticks and axe, a symbol of supremacy of the Roman emperor, as the symbol of his party। यानी कि बेनिटो मुसोलिनी ने अपनी जो फासिस्ट पार्टी थी तो उनके लिए उन्होंने एक जो सिंबल था वो सिंबल सिलेक्ट किया था, और वो सिंबल कौन सा था तो अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड एक्स, यानी कि वो एक सिंबल जो रोमन एम्परर की सुप्रीमेसी का एक सिंबल था, और उन्होंने यही सिंबल को अपनी पार्टी का सिंबल बना दिया था। फासिज्म हैज़ इवॉल्व फ्रॉम द इटालियन वर्ड फासिज्मो और फासिस, which means absolute control of the state on all things. So friend, fascism is a word which derived from fascismo and fascis, which were Italian words, and that meaning was एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑन ऑल थिंग्स। यानी कि जो फासिज्म वर्ड है तो वो दो इटालियन वर्ड के ऊपर से आया हुआ है, और वो दोनों वर्ड फासिज्मो और फासिस के ऊपर से आया हुआ है, जिसका मीनिंग ये होता है कि स्टेट की सभी थिंग्स के ऊपर उनका कंट्रोल है। मुसोलिनीज मैक्सिम वॉज वन पार्टी वन लीडर, यानी कि मुसोलिनी का जो मैक्सिम था, उनका जो स्लोगन था, तो वो स्लोगन ये था कि वन पार्टी वन लीडर, यानी कि एक ही पार्टी और एक ही लीडर होना चाहिए। He gave military training to his party volunteers who wore black uniform, यानी कि उन्होंने ही अपनी जो मिलिट्री जो थी तो उनको ट्रेनिंग देना उन्होंने शुरू किया था। जो भी वॉलेंटरी उसमें ज्वाइंट होते थे और उनका जो यूनिफॉर्म था तो वो ब्लैक यूनिफॉर्म था। आफ्टर कमिंग टू पावर, मुसोलिनी कैप्चर्स रोड्स एंड डोडेकेनेसिस आइलैंड्स फ्रॉम तुर्की, यानी कि मुसोलिनी जब पावर में आ गया उसके बाद उन्होंने तुर्की के जो दो आइलैंड्स थे वो दोनों आइलैंड्स को उन्होंने कैप्चर कर दिया। ही ऑल्सो वॉन अल्बेनिया, एबिसिनिया एंड फ्यूमपॉट इन 1924, और उसके बाद मुसोलिनी ने अल्बेनिया, एबिसिनिया और फ्यूमपॉट जो थे तो उनको 1924 में कैप्चर कर दिया। After these victories, Mussolini snapped all ties with the League of Nations and joined the Rome-Berlin-Tokyo axis। यानी कि मुसोलिनी डे बाय डे, ईयर बाय ईयर सक्सेस अचीव कर रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि अब इटाली जो है वो पावरफुल हो चुका है, तो उन्होंने लीग ऑफ नेशंस के साथ जो भी अपना रिलेशन थे वो रिलेशन को तोड़ दिया, और उन्होंने जो रोम, बर्लिन और टोक्यो एक्सिस थे तो उनके साथ ज्वाइंट कर दिया, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ उन्होंने साइन कर दिया, और जबकि उन्होंने लीग ऑफ नेशंस के साथ जो रिलेशन था तो वो तोड़ दिया। दस इटाली बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और इस तरह से इटाली जो था तो वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री बन गया था। सेकंड नंबर, नाजीज़म इन जर्मनी। Germany had lost the First World War. It was economically ruined. Paris peace process had compelled Germany to sign the Treaty of Versailles. We know that, friend, in the First World War, Germany was defeated, and as a result of that, the condition of the Germany was very poor after the First World War, and they had to sign in a Treaty of Versailles with a pressure. Germans were extremely angry with this unjust treaty, यानी कि जो जर्मन पीपल थे तो वो एक अनजस्ट ट्रीटी के कारण वो बहुत ही गुस्से में थे। एडोल्फ हिटलर ज्वाइन द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी इन 1919, यानी कि एडोल्फ हिटलर जो थे तो उन्होंने एक नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स की जो पार्टी थी तो 1919 में उन्होंने ये पार्टी को ज्वाइन किया था। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी। द नाजी फिलोसॉफी इंक्लूडेड नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, यानी कि ये जो पार्टी है तो वो पार्टी बाद में नाजी पार्टी के नाम से जानी गई, और उनमें जो नाजी फिलोसॉफी है जो नेशनलिज्म और सोशलिज्म के लिए पॉपुलर है तो वो नाजी फिलोसॉफी उन्होंने अडॉप्ट की।
After the death of the German president Hindenburg, Hitler assumed the post and established his dictatorial rule. यानी कि जर्मनी के जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, उनकी जब डेथ हो गई तो उनके बाद हिटलर ने अपनी जो पोस्ट है यानी कि हिटलर ने जो अपनी प्लेस है तो वो प्लेस वहाँ पे बना ली थी हिंडनबर्ग की जगह पे, और उन्होंने अपनी जो डिक्टेटोरियल जो रूल्स है तो वो रूल्स को शुरू किया था. ही अडोप्टेड स्टर्न एंड एग्रेसिव पॉलिसीज एंड लेड द जर्मन्स टुवर्ड्स नैरो नेशनलिज्म. यानी कि उन्होंने एक एग्रेसिव पॉलिसी को चॉइस किया था और वो जर्मनी के लोगों में एक नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो फीलिंग को अवेयर करवाना चाहता था कि ताकि जर्मन पीपल अपने जो नेशनलिज्म फीलिंग है तो फीलिंग को वो आगे ला सके, और इसके लिए उन्होंने एक एग्रेसिव पॉलिसी जो है तो एग्रेसिव पॉलिसी को चॉइस की थी. जर्मन्स कंसिडर हिटलर एज ए फॉरर यानी कि सेवियर. जर्मनी के जो लोग थे तो वो हिटलर को एक फॉरर की तरह मानते थे कि जिनका मीनिंग होता है सेवियर, यानी कि जो एक रक्षक की तरह हिटलर को जर्मनी के पीपल मानते थे. और ये इसलिए हुआ था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी के पास ऐसा कोई भी लीडर नहीं था कि जो जर्मनी को प्रेजेंट कर सके और कोई बचा सके. तो उसके बाद ये हिटलर ही एक ऐसा जो वॉरियर था कि जो जर्मनी को बचा सकता था, और उन्होंने अपनी जो जर्मनी के जो लोग हैं उनमें एक विश्वास भी पैदा कर दिया था. सेकंड पैराग्राफ. नाजी सोल्जर्स वॉर ब्लू मिलिट्री यूनिफॉर्म एंड स्टक अ रेड स्ट्रिप ऑन देयर शोल्डर एंड वॉर अ सिंबल ऑफ स्वस्तिक. यानी कि नाजी सोल्जर्स जो थे तो वो ब्लू मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनते थे और उनके शोल्डर के ऊपर एक रेड स्ट्रिप लगती थी और उनका जो सिंबल था तो वो सिंबल स्वस्तिक था. हिटलर्स authoritarian and militarist nature became obvious after coming to power. यानी कि हिटलर जो था तो वो खुद ही एक मिलिट्री से बिलोंग करता था और उसके कारण उनका जो नेचर था वो नेचर भी एक मिलिटरिस्ट नेचर था कि उन्होंने अपना ये नेचर है तो वो नेचर अपने पावर में आने के बाद उन्होंने ये शुरू कर दिया था. His main aim was the emergence of Germany एज ए मेजर पावर. और उनका एम ये था कि किसी भी कुछ भी करके जर्मनी की जो है तो जर्मनी को एक मेजर पावर में ला सके और वर्ल्ड में जर्मनी को एक फिर से एक ताकतवर देश की तरह वो देखना चाहते थे. इन द सेम ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ द जर्मन रेस हिज पॉलिसीज वर टारगेटेड एट एक्सटर्मिनेटिंग ज्यूज, जिप्सीज एंड मेंटली चैलेंज्ड पीपल. यानी कि वो अपने जो जर्मनी की जो सोसाइटी है तो उनको प्योरिफिकेशन करने के लिए उन्होंने जो अपनी जो पॉलिसी अडोप्ट की थी तो पॉलिसी ऐसी थी कि जो ज्यूज, जिप्सीज और मेंटली चैलेंज पीपल है तो उनको डायरेक्टली उन्होंने टारगेट किया था. बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इननंबरेबल यूरोपियन ज्यूज लॉस्ट लाइव्स विच इज नोन एज द हॉलोकॉस्ट मीन्स जीनोसाइड. यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में इननंबरेबल यानी कि असंख्य यूरोपियन ज्यूज जो थे तो उन्होंने अपनी जो जान थी वो गंवा दी थी और उसको दुनिया में एक हॉलोकॉस्ट यानी कि जीनोसाइड यानी कि उनको एक नरसंहार के नाम से जाना जाता है क्योंकि हिटलर ने ये सभी की जो है तो वो कत्लेआम करवाई थी. हिटलर्स एक्सपेंशनिज्म, मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट नेबरिंग कंट्रीज एंड द पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेटिंग सर्टेन ग्रुप्स लेड टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड बिकेम एन इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द सेम. यानी कि जो हिटलर की जो पॉलिसी थी तो वो एक्सपांसन वाली पॉलिसी थी कि वो कुछ भी करके अपने जो एरियाज थे तो वो एरियाज को एक्सपांड करना चाहता था और उन्होंने अपने जो मिलिट्री फोर्सेस है तो मिलिट्री फोर्सेस का यूज अपने नेबर कंट्रीज़ के लिए भी किया था. और साथ में ये सब जो पॉलिसी उन्होंने ऐसे अडोप्ट की थी कि जो सब उनको सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ वो ले जा रही थी और इस तरह से जर्मनी भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के लिए एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री बन गया था. थर्ड नंबर, मिलिटरिज्म इन जापान. अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स of 1919, Japan did not get the benefit of the provinces of China as expected. England and France distribute many regions of Germany between them. So friend, according to the Treaty of Versailles, Japan did not get the benefit from Treaty of Versailles which they have expected, and
England and France distribute many regions of Germany between them. जापान वॉज क्वाइट डिस्प्लीज विथ दिस, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी के बहुत से हिस्से अपने बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे और उसके कारण जो जापान था तो वो जापान बहुत ही नाखुश था। इन द 1921 to 1922 Washington meet, Japan had to agree to have only 35% of the English and American naval force। यानी कि 1921 और 1921 to 1922 में जो एक वॉशिंगटन में मीटिंग हुई थी तो उसके मुताबिक जापान को इंग्लिश और अमेरिकन नेवल फोर्स की 35% ही उनको देना था, यानी कि उनके साथ ही उनको एग्री होना था और वो भी फोर्सफुली ऐसा उनको बोला गया था। जापान ऑल्सो हैड टू वैकेट द आइलैंड्स ऑफ सखलेन एंड साइबेरिया, और साथ में जापान को सखलेन और साइबेरिया के जो आइलैंड्स थे तो वो भी उनको वैकेट कर देना पड़े थे, यानी कि वो भी उनको छोड़ देने पड़े थे। द जापानीज यूथ वॉज एंग्री एट दिस। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वर इलेक्शंस इन जापान एंड द पार्टीज सपोर्टिंग मिलिटरिज्म गॉट द मेजॉरिटी। और उस वक्त जो जापानीज यंगस्टर थे, यूथ थे, तो वो बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि उनको जो मिलना था वो उनको मिला नहीं था। और उसी वक्त जापान में इलेक्शन था, और जापान में इलेक्शन था तो उस वक्त जो कॉमन सिटीजन्स थे, जो यूथ थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो मिलिटरिज्म जो पार्टी मिलिटरिज्म को सपोर्ट करने वाली थी तो उनको मेजॉरिटी दिलाकर इलेक्शन में जितवाया था। द मिलिट्री नेशनलिज्म ऑफ जापान अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपेनिज्म, यानी कि एक मिलिट्री नेशनलिज्म जो थी तो वो फीलिंग, यानी कि एक ये जो पॉलिसी थे तो वो जापान ने अडोप्ट की थी, और साथ में एक एक्सपेंशन वाली जो पॉलिसी है तो वो भी उन्होंने अडोप्ट की थी। जापान डिड नॉट गेट अ परमानेंट प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस। द वेस्टर्न कंट्रीज कुड नॉट स्टॉप द इंपीरियलिस्ट एक्टिविटीज़ ऑफ जापान, यानी कि जापान जो है तो जापान को एक परमानेंट प्लेस लीग ऑफ नेशंस में नहीं मिला था, जबकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ भी जापान की इस इंपीरियलिस्ट एक्टिविटीज़ को भी स्टॉप नहीं करवा सका था, यानी कि वो भी उसको रोक नहीं सका। जापान आगे ही आगे बढ़ता गया। जापान कैप्चर्ड मंचूरिया एंड एस्टेब्लिश मांचुकाओ गवर्नमेंट इन 1932, यानी कि जापान ने मंचूरिया को कैप्चर किया और वहाँ पे मांचुकाओ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया था 1932 में। ऑल्सो इट कैप्चर्ड कोरिया, मंगोलिया, शांटिंग एंड सम प्रोविंसेस ऑफ चाइना, और इसके अलावा जापान ने कोरिया, मंगोलिया, शांटिंग और चाइना के कुछ प्रोविंसेस को भी कैप्चर किया था। इट इम्प्रूव इट्स रिलेशन विथ जर्मनी एंड इटाली एंड लेट लूज इट्स रिंग ऑफ इम्पीरियलिज्म, यानी कि उन्होंने बाद में जर्मनी और इटाली के साथ भी अपने जो रिलेशन है वो रिलेशन अच्छे किए थे। आफ्टर एम्परर मीजी, एम्परर हिरोहितो 1936 ऑल्सो एनकरेज दिस एक्टिविटीज़ ऑफ जापान, यानी कि एम्परर मीजी के बाद उनके बाद जो एम्परर आए थे हिरोहितो 1936 में, तो उन्होंने भी ये जो जापान की जो एक्टिविटीज़ थी, इंपीरियलिस्ट जो पॉलिसी थी, एक्सपेनिज्म की जो पॉलिसी, तो उन्होंने भी ये पॉलिसीज़ को एनकरेज किया था। दस जापान स्नैप ऑल इट्स टाइज विद द लीग ऑफ नेशंस 1933, यानी कि इस तरह से जापान ने लीग ऑफ नेशंस के साथ अपने जो भी रिलेशंस थे तो वो 1933 में तोड़ दिए थे। फॉर नंबर ग्लोबल डिप्रेशन ऑफ 1929 to 1932, the heads of most of the European nations had the belief that with the end of the First World War, even the post-war problems of the world will come to an end। यानी कि यूरोपियन नेशंस के सभी जो हेड्स थे तो वो ऐसा बिलीव कर रहे थे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये पोस्ट वॉर की जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई है तो वो सब कुछ फिनिश हो जाएगा, यानी कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। बट दिस प्रूव रॉन्ग, यानी कि उनकी जो ये बिलीफ थी, उनकी जो ये मान्यता थी, तो वो यहाँ पे रॉन्ग हुई थी। सडनली अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स बिगेन टू बी सोल्ड इन द वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट, कॉजिंग द स्टॉक मार्केट टू क्रम्बल। अचानक से जो वॉल स्ट्रीट के जो शेयर्स थे तो वो
सेलिंग उनका होना शुरू हो चुका था और उसके कारण वर्ल्ड का जो स्टॉक मार्केट था उस वर्ल्ड का स्टॉक मार्केट तो उनकी एक एडवर्स इफेक्ट हुई थी। दिस वॉज कॉल्ड एज द वॉल स्ट्रीट क्राइसिस बाय द क्रिटिक्स 24 अक्टूबर 1929। यानी कि इस कंडीशन को जो क्रिटिक्स थे तो क्रिटिक्स ने वॉल स्ट्रीट क्राइसिस के नाम दिया था और वो 24 अक्टूबर 1929 की डेट थी। दिस क्राइसिस shook the whole world and shattered the economic condition of the nations, giving birth to the Great Global Depression। और इस क्राइसिस ने वर्ल्ड की सभी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी तो उनको सैटर कर दिया था, यानी कि अस्त व्यस्त कर दिया था और उसके कारण एक ग्रेट ग्लोबल डिप्रेशन जो है तो वो वर्ल्ड में आ चुका था। मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर अफेक्टेड बाय दिस, यानी कि ये ग्लोबल डिप्रेशन के कारण वर्ल्ड के सभी कंट्री इफेक्ट हुई थी, उनके कारण उनकी जो असर है तो सभी कंट्री में हो चुकी थी। Even a superpower like Great Britain had to sacrifice its policy of keeping gold reserve against its currency pound। यानी कि उस वक्त की जो सुपर पावर कंट्री थी ग्रेट ब्रिटेन, तो उनको भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा था और ये सेक्रीफाइस करना पड़ा था कि उनको जो अपने पाउंड है तो पाउंड के अगेंस्ट में जो गोल्ड है तो गोल्ड को भी उनको रिजर्व अपना जो पाउंड है वो रिजर्व रखा हुआ था तो उनको बेच देना पड़ा था। दिस अफेक्टेड द अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और उनका जो असर है तो उनकी जो असर है एक इंटरनेशनल ट्रेड और इंडस्ट्री ऊपर पड़ी कि जो सब दुनिया के सभी कंट्री में इसकी अफेक्शन हुआ था। प्रॉस्पेरियस नेशंस लाइक अमेरिका ऑल्सो हैड टू इम्पोज स्ट्रिक्ट मेजर्स। यानी कि उस वक्त एक प्रॉस्पेरियस कंट्री अमेरिका जो थी तो उनको भी कुछ स्ट्रिक्ट जो मेजर्स थे तो वो इम्पोज करने पड़े थे, यानी कि वो भी उनको अपनी कंट्री में रखने पड़े थे। ग्लोबल ट्रेड वॉज रिड्यूस टू हाफ, दस वर्ल्ड वॉर टू मीन्स वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्टेड गेटिंग इट्स आउटलाइन। यानी कि वर्ल्ड का आधा जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है तो वो पूरा रिड्यूस हो चुका था, यानी कि वो सभी कंट्री इकोनॉमिकली पुअर हो गई थी और इसके कारण जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, यानी कि वो उनकी एक आउटलाइन के ऊपर था। नाउ फ्रेंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेकंड वर्ल्ड वॉर। इट वॉज स्टार्टेड इन 1939 एंड फिनिश इन 1945। First of all, we will see here factors which are responsible for the Second World War. The seed for the World War II had been sown in the Treaty of Versailles. Paris peace process had displeased many nations. The events that happened after that led to the World War II. So friend, the Treaty of Versailles was considered as the main responsible factor for the Second World War. और जो पेरिस पीस प्रोसेस है तो उसके कारण दुनिया में ऐसी बहुत सी कंट्रीज थी कि जो उनसे नाखुश थी और ये सब जो घटनाएं हैं, ये सब जो इवेंट्स है तो वो वर्ल्ड की हर एक कंट्री को अब सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले गई। सो डियर चिल्ड्रन, लेट्स स्टडी द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्ल्ड वॉर टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर causes of World War II. Among these causes, we will learn about fierce nationalism. After the First World War, fierce nationalism developed in Germany, Japan, and Italy. Germans could never forget and overcome the Treaty of Versailles. So, friend, after the First World War, Germany, Japan, and Italy had adopted fierce nationalism. और जो जर्मन से यानी कि जर्मनी है तो वो ट्रीटी ऑफ वर्सल्स में जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ था तो उससे वो बाहर नहीं निकले थे, यानी कि वो कभी उनको भुला नहीं सके थे। कॉन्सिक्वेंटली हिटलर कैप्चर्ड सम प्रोविंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड चेकोस्लोवाकिया फॉलोइंग हिज नाजी फिलोसॉफी दैट जर्मन्स मस्ट गेट ऑल दोज प्रोविंसेस वेयर जर्मन्स वर स्टेइंग। और उसके परिणाम में ये मिला कि जो हिटलर है तो हिटलर ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के जो प्रोविंसेस थे तो वो प्रोविंसेस को कैप्चर कर दिया और जहाँ पे भी जर्मन्स थे, जहाँ पे जर्मन्स स्टे थी तो वहाँ पे जो नाजी फिलोसॉफी है और जर्मन्स जो है तो नाजी फिलोसॉफी को उन्होंने अडॉप्ट किया और उनके कारण
जो भी प्रोविंसेस है तो प्रोविंसेस को हिटलर ने फाइनली कैप्चर कर दिया था। इटाली कुड नॉट फॉरगेट दैट इट वाज इग्नोर्ड इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में भी जो इटाली है तो इटाली को भी इनजस्टिस हुआ था जैसे जर्मनी को हुआ था। तो वो इटाली भी अब ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में उनको इस साथ जो इनजस्टिस हुआ था वो उनको भुला नहीं सके थे, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में इटाली को इग्नोर कर दिया गया था। Under the leadership of the fascist party, Mussolini started the fierce nationalism and adopted imperialist policies. यानी कि इटाली में अब जो फासिस्ट पार्टी थी कि जो मुसोलिनी उनका लीडर बना हुआ था, तो वहाँ पे भी फियर्स नेशनलिज्म जो है और इंपेरियलिस्ट पॉलिसी से तो वो अडॉप्ट कर दिया था। On the other hand, from Asia, Japan too gave in to imperialism. Thus, world peace was in danger. और दूसरी तरफ जो एशिया कॉन्टिनेंट में जो जापान है तो जापान ने भी इंपेरियलिज्म की जो पॉलिसी है तो वो पॉलिसी अडॉप्ट की और फाइनली जो वर्ल्ड पीस है तो वर्ल्ड पीस खतरे में आ चुकी थी। तो इस तरह से जो जर्मनी, जापान और इटाली तीनों कंट्रीज में जो एक फियर्स नेशनलिज्म की जो पॉलिसीज अपनाई थी तो उसके कारण अभी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर की कगार पे अब दुनिया जो है तो वो खड़ी थी। नाउ फ्रेंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेकंड कॉज फॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर। इट वाज ग्रुपिज्म। सिंस फ्रांस वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ जर्मनी आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, it entered into a treaty with Belgium, Poland, Romania, and Czechoslovakia. So, friend, France was always afraid of Germany after First World War. यानी कि जो फ्रांस है तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी से डरता था और उसके कारण उन्होंने जो बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोविया के साथ जो ट्रीटी थी तो वो ट्रीटी कर दी। Italy signed treaty with Czechoslovakia, Yugoslavia, Romania, Hungary, Greece, तुर्की एंड ऑस्ट्रिया। यानी कि जो इटाली है तो इटाली ने चेकोस्लोविया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, हंगेरी, ग्रीस, तुर्की और ऑस्ट्रिया के साथ ट्रीटी कर दी थी। रशिया साइन ट्रीटी विथ जर्मनी, टर्की, लिथुआनिया एंड ईरान, जबकि रशिया ने जर्मनी, टर्की, लिथुआनिया और ईरान के साथ ट्रीटी कर दी थी। Italy formed the Rome-Berlin-Tokyo Axis group with the support of Germany and Japan. So friend, Italy had formed one Axis group which name here given Rome-Berlin-Tokyo, and it was formed with the support of Germany and Japan. Next point, England and France formed another group with democratic values. Germany signed a non-aggression treaty with Russia. कि जबकि इंग्लैंड और फ्रांस जो थे तो दोनों ने साथ में मिलकर जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज थे तो वो उनको अडॉप्ट किया और जर्मनी ने जो रशिया के साथ नॉन एग्रेशन जो था तो वो ट्रीटी कर दी थी। दस अ होल एटमॉस्फेयर ऑफ फियर स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड, दिस फैक्टर टू गिव एन इम्पेटस टू द वर्ल्ड वॉर। तो ये पूरा जो माहौल खड़ा हुआ था, पूरा जो एटमॉस्फेयर खड़ा हुआ था कि जिनके कारण जो वर्ल्ड वॉर जो है तो वो शुरू हो सकता था और वही जो फैक्टर्स है, ये सब जो फैक्टर्स है तो जो फैक्टर्स के कारण ही जो वर्ल्ड वॉर है तो वर्ल्ड वॉर को एक इम्पेटस मिला था। नाउ फ्रेंड वी आर गोइंग टू लर्न मिलिटरिज्म which was also responsible factor for the second world war. On one side, efforts were being made to maintain peace after the first world war, whereas on the other side, European nations were competing for ammunitions. So friend, after the First World War, there was extremely necessary to establish peace in the world, whereas on the other side, European nations were competing with each other for the production of ammunition. The production of more and more weapons increased in all European nations. यानी कि हर एक यूरोपियन नेशंस में जो वेपन्स थे तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होता था। War weapons better than the others were being manufactured. Some nations like Russia and Germany
बिगेन कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग कि रसिया और जर्मनी जैसी कंट्रीज ने अपने देश में जो मिलिट्री ट्रेनिंग है तो उनको कंपल्सरी बना दिया था। ऑल नेशंस बिगेन इंडक्टिंग मोर मैन इनटू नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी कि हर एक कंट्रीज जो थी तो वो अपनी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में जो मैन पावर्स थे यानी कि जो ह्यूमन पावर्स थे तो उनकी जो संख्या है या उनकी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ा रहे थे। In the east, Japan increased its military force. Finally, the World War II had been declared when even England and France tried to equip themselves with war weapons. कि ईस्ट में जो जापान है तो उन्होंने अपनी जो मिलिट्री फोर्स है तो उनको बढ़ा दी थी और फाइनली इस तरह से लास्ट में वर्ल्ड वॉर टू जो है तो वो डिक्लेयर हो गया था और उसमें जो इंग्लैंड और फ्रांस है तो वो मॉडर्न वेपन्स के साथ वो अपने खुद को तैयार कर रहे थे। नेक्स्ट, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। In order to establish peace after the First World War, the League of Nations was formed, but neither could it become a supreme organization having sovereignty over other nations of the world, nor did it have its own army to make the nations follow its principles. So friend, we know that after the First World War, League of Nations was established with the purpose of to establish peace in the world, but it was failed. कि ये हम जानते हैं कि लीग ऑफ नेशंस जो है तो वो फेल हुआ था, जिनका मकसद ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो दुनिया में जो शांति है वो कायम बनी रहे, मगर वो अपने इस मकसद में सक्सेस नहीं रहे थे। और ये इसलिए ऐसा हुआ था क्योंकि जो भी जो भी कंट्रीज इसके साथ जुड़ी हुई थी तो वो उनको इतना रिस्पेक्ट ये नहीं दे रही थी या फिर उनके जो लॉज थे, उनके जो रूल्स थे तो उनको फॉलो नहीं कर सके थे। और ये ऐसा इसलिए हो सकता था क्योंकि जो यूनाइटेड लीग ऑफ नेशंस की खुद की जो आर्मी है तो वो खुद की आर्मी नहीं थी और साथ में उनके जो प्रिंसिपल्स थे तो वो उनके प्रिंसिपल्स को भी फॉलो नहीं कर रहे थे। मेंबर नेशंस वर नॉट obliged to take their problems to the League of Nations or to accept the judgment passed by it। कि जो भी मेंबर ऑफ नेशंस थे यानी कि मेंबर नेशंस थे तो लीग ऑफ नेशंस की जो भी कमिटमेंट थी या जो भी उनके जजमेंट थे तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। यानी कि जो भी मेंबर नेशंस थे तो वो सब लीग ऑफ नेशंस के जो प्रिंसिपल्स थे, उनके जो जजमेंट थे तो वो सब उनको इग्नोर करते थे। Many nations had moved out of the League of Nations. Initially, Russia and Germany snapped their ties with the League of Nations. So friend, many nations had moved away from League of Nations and it was happened with Russia and Germany. They were depart from League of Nations. Later, Italy and Japan moved out because Italy had captured Abyssinia, Japan had attacked Manchuria, Germany had snatched away some provinces of Czechoslovakia। और उसके बाद जो इटाली और जापान जो थे तो वो भी लीग ऑफ नेशन से बाहर हो गए। और ये ऐसा इसलिए हुआ कि इटाली ने एबिसिनिया का जो प्रोविंस था तो वो कैप्चर कर दिया, जापान ने मंचूरिया का जो एरियाज था, प्रोविंसेस था तो वो कैप्चर कर दिया, और जर्मनी जो थी, जर्मनी ने भी चेकोस्लोवाकिया के जो कुछ प्रोविंसेस थे तो उनको कैप्चर कर दिया था। स्टिल द लीग ऑफ नेशंस कुड डू नथिंग। फिर भी लीग ऑफ नेशंस ने कुछ नहीं किया। द greed for power amongst the several nations became stronger in the League of Nations. It could not stop groupism. This was the biggest failure of the League of Nations. So friend, in short we can say that League of Nations could not stop those countries who had adopted imperialist policy, and that's why the groupism was increased, and that was the biggest failure of League of Nations. Fifth number, Treaty of Versailles. We know that friend, Treaty of Versailles done after the First World War. The Treaty of Versailles got its form in the Paris peace process at the end of the First World War.
Since Germany was found responsible for the war, it had to pay 6.5 billion pounds as a war fine. We know that, friend, Germany was considered as a responsible country for the First World War, and so that it had to pay 6.5 billion pounds as war fine. Its Ruhr province was taken away. Rhine River had to be opened for international sea route. कि उनकी जो रूहर प्रोविंस थी तो उनको कैप्चर कर दिया था, उनकी जो राइन रिवर थी तो वो इंटरनेशनल सी रूट के लिए कंप्लीटली ओपन कर दिया था. Thus, such an unfair and humiliating treaty was forcibly imposed on Germany. और इस तरह से ये जो ट्रीटी है तो ट्रीटी फोर्सिबली यानी कि जबरदस्ती से जर्मनी के ऊपर इम्पोज कर दिया था, जिससे जर्मनी एक्सेप्ट भी नहीं करता था, फिर भी उनको ये एक्सेप्ट करना पड़ा. द जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स एज अ पीस ऑफ पेपर एंड अनाउंस टू रिजेक्ट इट. कि जो जर्मनी के जो डिक्टेटर थे एडोल्फ हिटलर, तो वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को एक जस्ट पीस ऑफ पेपर मानते थे और वो उनको रिजेक्ट भी उन्होंने कर दिया था. Therefore, people of Germany were encouraged to fight war. On the other side, Japan was also dissatisfied with this treaty. और इस तरह से जर्मनी अपने जो वॉर है तो वो वॉर को एनकरेज करता था, और दूसरी साइड जो जापान था तो वो जापान भी इस ट्रीटी से सेटिस्फाइड नहीं था. Thus, Treaty of Versailles was unjust to many nations. This treaty planted the seeds of Second World War. So friend, Treaty of Versailles had been not accepted by all the nations, and in this way the seeds of Second World War was sown due to Treaty of Versailles. Sixth number, imperialistic ambition of Adolf Hitler. Hitler laid the foundation of the Second World War. He had a fierce nationalist and militarist nature. So friend, Hitler's nature was a fierce nationalist as well as a militarist nature. That's why he wished the unity, stability and prosperity of Germany at any cost. और इसके कारण वो कोई भी कीमत पे, कोई भी वैल्यू पे वो अपनी कंट्री में जो यूनिटी है, स्टेबिलिटी है और प्रोस्पेरिटी है जर्मनी की, तो वो हासिल करना चाहता था. The first victim of his imperialism was Austria. Along with the German army, he entered Austria on 12th March 1938. और उनका जो फर्स्ट विक्टिम बना था तो वो ऑस्ट्रिया बना था, और जर्मनी ने अपनी आर्मी के साथ ऑन 12th मार्च 1938 यानी कि 12th मार्च 1938 को ऑस्ट्रिया में वो एंटर हुई गई अपनी आर्मी के साथ. On the very next day of the Munich Convention, Germany had captured Czechoslovakia on 1st October 1938. यानी कि म्यूनिच कन्वेंशन के अगले ही दिन जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया को कैप्चर कर दिया 1st अक्टूबर 1938 को. After that, it had captured the Mammal port of Lithuania in March 1939. Thus, a grand German nation was created by Hitler. His imperialist policy was the main cause of the Second World War. So friend, in this way we can say that Hitler's imperialist policy was considered the main responsible factor for the Second World War. 7 number, German attack on Poland, an immediate cause. The above mentioned causes had made the whole world to sit on a heap of ammunition. यानी कि ऊपर जो दिए गए जो कॉजेस है, फैक्टर्स है, तो वो दुनिया को जो हीप ऑफ एमिनेशन यानी कि जो बारूद जो थे तो एमिनेशन से उनके ऊपर लाकर खड़ा कर दिया था. अ स्मॉल स्पार्क कुड ब्लो अप द होल वर्ल्ड, एंड दिस स्पार्क वाज जर्मन अटैक ऑन द पीसफुल पोलैंड ऑन सितंबर 1, 1939 अर्ली मॉर्निंग. और एक छोटा सा भी स्पार्क जो है तो वो दुनिया में एक बड़ा सा जो धमाका है वो कर सकता था, और ऐसा हुआ. जर्मनी ने जो पीसफुल पोलैंड था उनके ऊपर अटैक कर दिया.
और वो डेट थी September 1, 1939 की अर्ली मॉर्निंग की। Thus, World War II had begun. Britain and France want Germany to stop the war immediately, but Germany ignored the warning कि इस तरह से जो वर्ल्ड वॉर टू है तो वो स्टार्ट हो गया। फिर भी ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को वार्निंग दी कि वो इमिडिएटली जो अटैक है तो वो अटैक बंद करे और जो पीसफुल नेचर है अपना तो वो अपनाए। Hence, Britain and France plunged into this war. Consequently, the war spread in the entire world. कि ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को वार्न किया, फिर भी जर्मनी ने ये दोनों की वार्निंग को इग्नोर कर दिया और फिर बाद में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने एक वॉर में अपना जो एग्जिस्टेंस है वो दिखाया और इस तरह से जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर पूरे वर्ल्ड में शुरू हो चुका। So friend, we have seen here some responsible factors for the second world war, World War II, and outline. With the commencement of the World War II, the world was again divided into two groups. On one side was the group of allied nations led by England and France. On the other side was the group of Axis nations comprising Germany, Italy, and Japan. So, friend, with the commencement of the Second World War, the world was again divided into two groups. On one side there was the Allied nations, which was led by England and France, whereas other side there was the Axis nations, which comprising Germany, Italy, and Japan. Besides these, some other factors with war-driven mentality had entered into this. Japan attacked the American Navy at Pearl Harbor. As a result, America gave up on its neutral stand and retaliated. कि जापान ने अमेरिकन नेवी के ऊपर अटैक किया पर्ल हार्बर में, उसके कारण अमेरिका ने जो अपनी न्यूट्रल पॉलिसी जो थी तो वो अपनाई हुई थी तो उन्होंने न्यूट्रल पॉलिसी को छोड़ दिया। इट जॉइन द अलाइड नेशंस thus making it stronger और फाइनली उन्होंने अलाइड नेशंस को सपोर्ट किया और इस तरह से जो अलाइड नेशंस थे तो वो स्ट्रॉन्ग बने। When the war was going on in full swing, America dropped atom bombs on the two Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki, in order to stop Japan from moving any further. कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसी वक्त अमेरिका ने जापान के दो सिटीज जो थे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब ड्रॉप कर दिया और ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि जापान को वो स्टॉप करना चाहते थे कि वो अब ज्यादा कोई भी एक्शन न ले। 1,24,000 Japanese cities lost their lives and there was absolute destruction। और ये जो एटम बॉम्ब ड्रॉप किए थे अमेरिका ने तो इसके कारण जापानी जो थे तो जापानी सिटीजन जो 1,24,000 से ज्यादा जो जापानी सिटीजन थे तो उनकी जान चली गई थी और एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन उनको हुआ था। Japan surrendered on 11th August 1945 and World War II came to an end। फाइनली जापान ने 11th अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया और इस तरह से जो वर्ल्ड वॉर II है तो वो पूरा हुआ था। यानी कि जापान के सरेंडर करने से ये सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है तो वो फिनिश हुआ था, मगर तब तक बहुत से लोगों की जान चली गई थी। Now friend, we are going to learn about the effects of World War II, which are here given immediate effects. So first number here given economic effects. This war had caused horrendous destruction in the world. All the involved nations had incurred huge expenses. So friend, due to this second world war, there was a horrendous destruction in the world and those countries who were involved in second world war, they have incurred huge expenses. America had spent $350 billion and other nations had spent more than $1,000 billion। कि अमेरिका ने $350 बिलियन स्पेंड किया था जबकि अदर नेशंस जो थे तो उन्होंने $1,000 बिलियन से भी ज्यादा ये एक्सपेंस उनको हुआ था। Property worth the same had been destroyed too. England lost its property worth 2,000 crore and about Germany one can't imagine।
यानी कि जो इंग्लैंड था तो उनको 2000 करोड़ जितनी जो प्रॉपर्टी थी तो वो घुमा गंवा चुका था। और जर्मनी की तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि उन्होंने कितना लॉस किया था। The nations of the world gave more importance to the production of arms and ammunition. So, friend, during the Second World War or before the Second World War, maximum nations gave priority to the production of arms and ammunition. So, there was a scarcity of things for basic needs. क्योंकि उन्होंने जो आर्म्स और एमिनेशन का प्रोडक्शन को ही प्रायोरिटी दी थी, और इसके कारण ये हुआ था कि जो बेसिक नीड्स जो थी तो उनका प्रोडक्शन जो था तो वो कम हो चुका था, या उनकी जो स्कैरसिटी खड़ी हुई थी। प्रोडक्शन रिड्यूस, इन्फ्लेशन इंक्रीज, पीपल वर स्ट्रगलिंग फॉर लाइवलीहुड। कि प्रोडक्शन जो था तो वो कम हो चुका था, इन्फ्लेशन जो था तो वो बढ़ चुका था, और पीपल जो थे तो वो अपनी लाइवलीहुड के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। There was scarcity of necessary goods in the market. The economic life of people was shattered. कि मार्केट में जो नेसेसरी थिंग्स जो थी, नेसेसरी गुड्स जो थे, तो उनकी स्कैरसिटी शुरू हो चुकी थी, और पीपल जो थे उनकी लाइफ वो कंप्लीटली डिस्ट्रक्ट हो चुकी थी। एज ए रिजल्ट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वर pushed into an economic depression. There were major changes in the world politics and economy. और उसके परिणाम ये हुआ कि जो पूरी वर्ल्ड है, यानी कि पूरी दुनिया जो है, तो वो एक इकोनॉमिक डिप्रेशन में आ गई थी। और इसके कारण जो भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और इकोनॉमी जो है तो उसमें भी बहुत बड़े बदलाव आने लगे थे। सेकंड इफेक्ट, कम्युनिज्म इन चाइना। Many nations of the world were impressed by the way Russia had made a fast progress with its communist measures with the Bolshevik Revolution in 1917. So, friend, after the Bolshevik Revolution, Russia had adopted communalism, and that's why they had achieved maximum benefits, and so that many nations of the world impressed by Russia. चाइना टू वॉज इम्प्रेस, कि चाइना भी रशिया से इम्प्रेस हुआ था। जापान हैड बिकम वीक आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस इट्स कंट्रोल ओवर चाइना हैड रिड्यूस। कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान जो था तो वो भी वीक हो चुका था, और उसके ये जो सर्कमस्टेंसेस में जो चाइना जो है तो चाइना के ऊपर जो जापान का कंट्रोल था तो वो भी धीरे धीरे अब रिड्यूस होने लगा था। Taking advantage of this, Mao Zedong established communist rule in 1949 at the end of a revolution in China। और उसका एडवांटेज लेते हुए माओ त्से ने 1949 में जापान में कम्युनिस्ट रूल को एस्टेब्लिश किया, और उस वक्त चाइना में एक रिवॉल्यूशन जो था तो वो एंड पे था। थर्ड नंबर, द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। After the World War II, the world was divided into two superpowers like America and Russia। कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड जो था तो वो टू पार्ट में डिवाइड हो चुका था, टू सुपर पावर्स में डिवाइड हो चुका था, और वो जो सुपर पावर्स थे तो वो अमेरिका और रशिया थे। During the war, both the nations were friends, but after the war, the differences of opinion between them went on increasing. So, friends, during the Second World War, both the nations were friends, but after the war, there were differences of their opinion. Thus, the democratic America and the communist Russia became mutually opposite groups। यानी कि उस तरह से जो डेमोक्रेटिक अमेरिका और कम्युनिस्ट रशिया जो थे तो वो एक दूसरे के अब अपोजिट हो चुके थे। अदर स्मॉल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड जॉइन दीज टू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। और बाकी के जो छोटे नेशंस थे, छोटी कंट्रीज थी, तो वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो दोनों सुपर पावर्स को ज्वाइन करती थी। The war of words and the war of ideologies that both superpowers initiated in order to support or oppose each other's opinion created the atmosphere of Cold War। यानी कि वॉर के लिए दोनों कंट्रीज की जो आइडियोलॉजी थी, दोनों सुपर पावर्स की, तो वो दोनों को अपोज करते थे, और इस तरह से
जो एक कोल्ड वॉर का जो एटमॉस्फेयर है तो वो क्रिएट हुआ था। Many a times the situation for the third world war seemed to be grave। तो कई बार ऐसा भी होता था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो सिचुएशन है तो वो भी खड़ी हो सकती थी, तो ऐसी सिचुएशन भी कई बार हुई थी। So friend, we have seen here effects of the second world war, which are immediate effects